Good evening, everyone. Welcome to the official channel of Law Prep. The official sample paper for CLAT has been released. We discussed the logical reasoning and analytical reasoning section on this channel. We discussed almost all the questions. And I hope the sample paper must have calmed your nerves now. Very likely the pattern is going to be repeated in the actual paper. And since the sample paper was easy, doable, the actual paper is also going to be attainable, right? So that's what you have to believe in, that it's going to be attainable for you, right? But there were a few questions which appeared kind of confusing for some students because lately those questions have not appeared in previous year CLAT, right? So we are discussing those set of questions. One of them is assertion and reason, right? Though we have covered this topic in the classes and in our mocks as well, we have time and again given this set of question in different passages, but nonetheless, since it appeared in sample paper, a lot of students feel that they should be oriented about how to approach this question. So I decided to make this video just to put a stop to all the confusion this question might have raised in your mind. Okay, so assertion and reason. Let's quickly dive into what this question is. Okay, so assertion and reason, you might have seen this set of question in GK as well as in legal as well. So since it appeared in CR and this is actually a very integrated part of CR. So basically ये जो question है ये दो components को test करता है. One, truthfulness, बिकॉज वो कई बार आपके बेसिक जीके के कॉन्सेप्ट्स को भी टेस्ट करेगा. वो रीजनिंग में होगा लेकिन जीके के कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट करेगा. जैसे एलिट के जो क्वेश्चंस आए हैं असर्शन एंड रीजन के, वो बेसिक साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स और बेसिक फिजिकल साइंस को टेस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर रुपी का अप्रिसिएशन होता है तो फायदा किसको होता है, इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को, या बल्ब जो है लाइट बल्ब किस चीज का, किस एलिमेंट का बना होता है. तो दीज आर बेसिक साइंस एंड इकोनॉमिक्स एलिमेंट विच आर टेस्टेड इन दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो कई बार ये ट्रूथफुलनेस भी टेस्ट करेंगे, ट्रूथफुलनेस वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट. तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस सही है कि नहीं है. सो बेसिक जो आपने 10th 9th 8th तक जो साइंस पढ़ी है वो कभी कभी यहाँ पे अप्लाई होगी. सेकेंड जो ये टेस्ट करेंगे दैट इज लॉजिकल रिलेशनशिप. अगर आपका ए आंसर है, जो ए आंसर है यानी दोनों ट्रू है, एक तो आपने ट्रूथफुलनेस को टेस्ट कर लिया कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, यानी दोनों वेरीफाइड है. एंड सेकेंड, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लगेगा. दोनों के बीच में क्या एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, या दोनों ट्रू है लेकिन दोनों के बीच में कॉजल इफेक्ट नहीं आ रहा है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. तो ये बेसिकली दो स्किल्स को टेस्ट कर रहा है. वन, understanding of basic facts, basic science, so truthfulness, and second, logical relationship, whether they share causal relationship or not. ठीक है, सिंपल है. अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, but nonetheless when you actually get down to it, do the questions, applying your basic reasoning, applying your basic science understanding, the question is going to be easy. Next देखिए, अगर C आप लगाएंगे तो A is true but R is false, so that means ये truthfulness को डिस्कस करेगा. A is false but R is true, ये भी आपकी ट्रूथफुलनेस को डिस्कस करेगा. तो वन तो आपकी बेसिक साइंस. सेकंड, जो इस पैसेज में आया है, जो इस सैंपल पेपर में आया है, वो ट्रूथफुलनेस तब टेस्ट होगी जब आप पैसेज में जाके देखेंगे कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है. सो दो तरीके की ट्रूथफुलनेस डिस्कस होगी. वन, द बेसिक साइंस विच एलिट इज गोइंग टू टेस्ट, पॉसिबली CLAT also can test you on this. So basic science, basic physics, basics economics के प्रिंसिपल, तो ट्रूथफुलनेस आपको वहां पे टेस्ट करनी होगी. सेकेंड, जो पैसेज के बेस पे ट्रूथफुलनेस आएगी उसमें आपको अपनी साइंस नहीं लगानी है. वो ट्रूथफुलनेस विल ओनली बी बेस्ड ऑन व्हाट ऑथर हैज स्टेटेड इन द पैसेज. तो जो आपका सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है, जो वो असर्शन एंड रीजन है, उसकी ट्रू एंड उसकी फॉल्सिटी हमको सिर्फ और सिर्फ पैसेज से निकालनी है. ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पुराने क्वेश्चंस का. सो क्वेश्चन 1, असर्शन है कि टाइड्स इंडिकेट द रेगुलर एंड पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द सी लेवल. ठीक है, तो अगर हम बेसिक साइंस जानते हैं तो वी आर गोइंग टू क्विकली कम टू द आंसर दैट दिस इज ट्रू. ठीक है, तो ये इसकी ट्रूथफुलनेस को टेस्ट करेंगे तो दिस इज गोना बी ट्रू, क्योंकि टाइड्स जो है वो पीरियोडिक राइज एंड फॉल को इंडिकेट करती हैं. रीजन,
टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सी लेवल. ठीक है, तो ये हमको पता है कि बिकॉज ऑफ द gravitational force of the moon they happen, but do they happen because of sea level as well? No. तो यहाँ पे हमारा जनरल नॉलेज लगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंटिफिक फिनोमिनन यहाँ पे लगेगी. और क्योंकि ये सेंटेंस गलत है तो ये ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा. तो आप ऑप्शन उसके अनुसार चूज करेंगे कि ए इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बेसिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग लगी है. ये फर्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, नाउ यहाँ पे अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ इज सपोज टू बी अ यूनिवर्सल डोनर. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें ये पता है कि जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है. ठीक है, तो बेसिक साइंस का फैक्ट है और ये हमको पता है कि ये सही है. तो ट्रूथफुलनेस टेस्ट हो गई इसकी. सेकेंड, द ग्रुप ओ डज नॉट कंटेन एनी एंटीजेंस. ये भी हमें साइंस अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि ये भी सही है. सो ट्रूथफुल यहाँ पे भी डिस्कस हो गई. ठीक है, तो बोथ आर ट्रू. अब यहाँ पे आपका लॉजिकल रिलेशनशिप भी लगेगा. क्या ये सेंटेंस इस चीज का इफेक्ट है? ठीक है, सो क्यों उनको डोनर कहा जाता है? बिकॉज उनके ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है. तो क्या आप यहाँ पे बिकॉज से दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं? अगर आप बिकॉज से इन सेंटेंसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो लॉजिकल रिलेशनशिप बन जाएगा, यानी ये दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं. इसी वजह से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा. I'll just read out the sentence. A person with blood group O is supposed to be a universal donor because group O does not contain any antigen. As and when you put because between these two sentences, quickly you understand whether these are connected in a logical relationship or not. And since they are, the answer is going to be A here. ठीक है? So this is second variety of question. अब देखिए, ये थर्ड है जो एलिच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टाइटेनियम. ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगेन साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो आप शायद भूल चुके होंगे या फिर कई लोगों को याद भी होगा क्योंकि जीके का भी ये पार्ट है. सो ये टाइटेनियम का नहीं बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है. ठीक है, सो अगर आपको वो याद है तो दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. ठीक है, तो साइंस यहाँ पे भी लगा. सेकेंड, the filament should have low melting point. Now, क्योंकि वो अंदर है बल्ब के, so that means it should have high melting point या low melting point. It should actually have high melting point, तभी तो वो actually heat को endure कर पाएगा और वो वहाँ पे melt नहीं होगा. ये दोनों ही statement क्या है? ये गलत है. तो आपका आंसर उस हिसाब से होगा. ठीक है? So this is purely GK. And the earlier question that we discussed, that was GK as well as logical relationship. ठीक है, अब वो क्वेश्चन करते हैं जो सैम्पल पेपर में दिया हुआ है. ठीक है, आई हैवंट टेकन द पैसेज. आई होप यू हैव रेड द पैसेज, डन द सैम्पल पेपर. क्योंकि ये पैसेज हम लोगों ने जब सैम्पल पेपर डिस्कस किया था ये वाला पैसेज नहीं किया था. ठीक है, आई होप यू हैव डन इट लेटर ऑन. ये पैसेज बेसिकली ये है कि जो ओवरऑल जो स्केलेटन है पैसेज का वो ये है कि एआई की डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारी कंट्रीज होल्ड कर रही हैं वेपन्स को. ठीक है, वो आर्म रेस में आ गई हैं क्योंकि उनको लगता है कि दूसरी कंट्री के पास है, हम क्यों पीछे रह जाए. ठीक है, सो दे आर एक्चुअली होल्डिंग आर्म एंड दे आर गेटिंग इनटू एन आर्म रेस. एंड वही पूरा पैसेज का वो है. प्लस ये भी बताया गया है कि एक बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई एजेंसी नहीं है जो इस आर्म रेस पे कंट्रोल कर सके. एक यूएन को उन्होंने कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल उसमें किया है कि एक एजेंसी नहीं है जिसने सभी को इसके लिए स्टॉप किया हो या इस चीज को प्रिवेंट कर पाई हो. तो बेसिकली वही प्रॉब्लम डिस्कस हुई है कि एआई की वजह से किस तरह से आर्म जो है वो आर्म रेस शुरू हो गई है. ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ये उस वैरायटी का क्वेश्चन है जहां पे ट्रूथफुलनेस, लॉजिकल रिलेशनशिप दोनों सिर्फ और सिर्फ पैसेज पे डिपेंड करेंगे, जीके पे डिपेंड नहीं करेंगे. आपके पैसेज के अनुसार ही आपका जीके निकलेगा. ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट, एआई ड्रिवन वॉरफेयर में लोअर द थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट. आपका थ्रेशोल्ड यानी आपकी सीमा. ठीक है, जो आपका थ्रेशोल्ड होता है वो ये डिसाइड करता है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं. ठीक है, आप किस लेवल तक किसी चीज को एंड्योर और बर्दाश्त कर सकते हैं. जैसे मेरा गुस्सा होने का थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है,
ठीक है, इफ somebody is really manhandling with me, bickering with me, then only I lose my temperament, otherwise I am very calm and composed. तो मेरा थ्रेशोल्ड बहुत ऊपर है, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि एआई की वजह से जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो गया है, ठीक है। तो पहले कंट्रीज तब तक वॉर नहीं करती थी जब तक उनका थ्रेशोल्ड क्रॉस न हो जाए, यानी जब तक कोई फुल फ्लेजेड वॉर न हो तब तक वो एक फुल स्केल वॉर में एंगेज नहीं करती थी। छोटी मोटी घटनाएं हो जाए, सीमा पे सैनिक भिड़ जाए या एक आध बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, उससे फुल फ्लेजेड वॉर नहीं होता था। फुल फ्लेजेड वॉर तभी होता था जब एक्चुअली अग्रेशन होता था। तो थ्रेशोल्ड ऊपर था, अब वो थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है क्योंकि सभी आर्म रेस कर रहे हैं, सभी होर्डिंग कर रहे हैं, अमास कर रहे हैं वेपन्स को, और उसकी वजह से सभी को ये डर है कि कभी भी कोई भी क्या कर सकता है, हमला कर सकता है। तो उनकी थ्रेशोल्ड जो है वो कम हो गई है, यानी वो अब छोटी सी घटना पे, स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन पे भी क्या कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो उनकी कम हो गई है, ये पैसेज ने एक्चुअली बोला है कि सभी क्योंकि कर रहे हैं तो एक डर का माहौल है, एक एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट का माहौल है। तो उनको लगता है कि ये भी वेपन इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे नेबर हैं, तो हमको भी वेपन इकट्ठे करने चाहिए, शायद हमारे ऊपर ही हमला करने के लिए वो कर रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट there is a distrust, there is a huge mistrust which has developed between nations, and that is why the threshold has reduced. So this is true as per the passage. If you read the passage carefully, you will come to know that this is supported by the passage. AI driven warfare may lower, and author has expressed this possibility. तो may से तो हमारा वो आंसर बन रहा है. So this is truthfulness. तो एक तो truthfulness prove हो गई इसकी. Second, nations may feel emboldened by technological superiority and believe preemptive strikes are safer. अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है तो सबको लगता है कि हमारे पास ये भी वेपन है, हमें बचा लेंगे और हर तरह के वेपन को नलिफाई कर देंगे, हर तरह के अटैक को काउंटर कर देंगे। तो उसकी वजह से एक फॉल्स सेंस ऑफ, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि हमारे पास इतने बढ़िया वेपन्स हैं कि अब तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि आपको एक इमिनेंट थ्रेट है, आप पे एक्चुअली हमला हुआ नहीं है बट आपको थ्रेट है कि आप पे हमला हो सकता है। जैसे यूक्रेन एंड रशिया है, तो यूक्रेन को ये डर है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसी डर से वो क्या करेगा, कर सकता है कि यूएस की सहायता से प्रीएम्प्टिव अटैक कर ले, ठीक है, कि रशिया ना करे उसके पहले ही, क्योंकि उससे डर है होने का, उसके पहले ही यूक्रेन ने उसको अटैक कर लिया। सो दैट इज प्रीएम्प्टिव अटैक, ठीक है। सो यू हैव जस्ट थ्रेट, यू आर जस्ट इंटिमिडेटेड दैट अ कंट्री काइंड माइट अटैक यू, यू डू द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एंड यू अटैक द कंट्री बिफोर हैंड। सो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है कि हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, इट माइट हैपन। सो यहाँ पे ये बोल रहा है मे फील, एंड ऑथर हैज एक्सप्रेस्ड दिस पॉसिबिलिटी। मे फील, मे, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी ऑथर ने एक्सप्रेस की हैं। तो ये क्यों हो सकता है, उनकी थ्रेशोल्ड को क्यों कम कर सकता है, क्योंकि उनके अंदर फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ चुकी है कि हमारे पास इतने वेपन है, अब हम आराम से स्ट्राइक कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज ए। तो यहाँ पे जो लॉजिकल रिलेशनशिप है, बोथ आर ट्रू एज पर द पैसेज, एंड देन वी सर्च्ड फॉर द लॉजिकल रिलेशनशिप, दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, ठीक है। सो आई होप विद दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सेंटेंस वर्डिंग है, द फ्रेज है, फ्रेजिंग है, वो थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज किया। उन्होंने ये सोचा कि थ्रेशोल्ड अगर लोअर हो गया है तो एक्चुअली वो अटैक नहीं करेंगे। बेसिकली थ्रेशोल्ड का मतलब है आपकी जो सीमा है, जो आपने अपने लिए एक लिमिट तय करके रखी है, जो आप अपने एक अपर लिमिट तय करके रखी है, वो आपने लोअर कर दिया। यानी आप पहले यहाँ थे, अब यहाँ हो गए, यानी अब आप जल्दी अटैक करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अंडरडल करना सीखिए, सेंटेंस को अपने लफ्जों में चेंज करके उसको सिंप्लीफाई कीजिए ताकि देखें कि एक्चुअली वो बोल क्या रहा है, ठीक है। So I hope assertion reason is clear. I told you about the kinds of assertion and reason. One is going to test your GK, second is going to test your logical understanding, and third will be completely based on passage. ठीक है? So इसके लिए तैयार रहिए. I'm sure you will be able to deal with this question perfectly fine. Thank you.